Students, Ikra High School online teaching method standard 3rd, subject English, unit 4. Dear students, you see in your textbook, page number 34, have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shell that sings. ओके सो ये पोयम जो है किसके बारे में? शेल्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पे आई विल रीड अलाउड दिस पोयम एंड अंडरस्टैंड यू. सी सॉन्ग. ओके, एक छोटा सा एक सॉन्ग है अबाउट सी. आई फाउंड ए शेल, ए कर्ली वन lying on the sand. I picked it up and looked it home, curled inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too. Okay, dear students, हम while you was very young in this stage, you will experience all these things, and this is hearsay or saying from your grandmother or grandfather, from your elders. These things you came to know. यहाँ पे एक सी सॉन्ग है, होता ना, इसको हम ख्याल होता है जब हम व्हेन यू विजिट समटाइम्स शी शोर रिवर्स, जब हम नदी के किनारे या दरिया के किनारे में हम घूमने जब जाते हैं तो वहाँ हमें अक्सर छोटे बच्चे ढूंढते हैं ना, वो होते हैं छोटे से. ओके, उसको हम क्या कहते हैं, इसको शेल कहते हैं ना, छोटा सा होता है शेल. यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो वो रेत पे पड़ा हुआ था. ठीक है, आई फाउंड ए शेल, ए कर्ली वन, वो भी सब वो कर्ली होते थे, घुमे होते, स्नेल की तरह होते, राइट, लाइंग ऑन द सैंड, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था रेत पे. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, वो उसने ले लिया और घर पे ले. अक्सर हम भी करते, आप भी करते बच्चे, ठीक है ना. कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर. अब मम्मी को जाके दे दिया वो. देखो मम्मी, मैंने जहाँ पे समंदर के किनारे पे गया था तो मैं ये शेल लेके आया, तो मम्मी तो एक्सपीरियंस है, वो मम्मी ने कहा देखो बेटा आप ये कान के पास रखो, तो उसमें अंदर से एक आवाज़ आती है, एक साउंड आती है. एक मिथ है या रियल है, समथिंग टेक्निकल टर्म हियर, टेक्निकल थिंग. सो यहाँ पे वो मम्मी ने वो अपने बेटे के कान पे रख दिया, आप देख सकते हो तस्वीर में. ओके, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर एंड फाउंड फ्रॉम द सेल देयर केम ए सॉन्ग. एक छोटा सा अंदर से एक आवाज़ आ रही सॉन्ग की तरह, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, एकदम सॉफ्ट स्वीट मीठी साफ, अंदर से एक आवाज़ जैसी आ रही सॉन्ग की तरह. आई वॉज सरप्राइज, मैं चौंक गया. आई लिसन हार्ड, मैंने बहुत दिमाग अटेंटिव से, बहुत मतलब कान बड़े होते ना कि बड़े ध्यान रख के सुना. बट इट वॉज रियली ट्रू. हाँ भाई, ये तो बहुत सही बात, सच है, बट इट वॉज रियली ट्रू. आई विश यूड फाइंड इज नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू. वो कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, आप भी. ओके, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी नाइस बिग शेल आपको मिले और आप ये आवाज़ सुन के एंजॉय कर सकें. ठीक है. सो dear students, up in this stage in your third standard, so you have to inculcate to learn new words, try to by heart this song, improve your handwriting, listening skills. You more listen, more practice, so you can definitely, when you come to in your higher classes, you will able to speak good English, you will able to write this type of some poems, you can create something, but it needs tremendous effort. Okay, so next, moving ahead. Okay, see here textbook in page number 38. Again here prose, here story. Okay, while your listening skills, it will develop your listening skill, and you in your textbook will read many times, read. Then you will able to speak very good English one day, I hope, definitely. So you practice this, you come many new words, you try to understand, you try to get the meaning of that words. Okay, so in English too you can able to learn grammar, prose and grammar, then you can automatically learn good English. So
I will read aloud this story and I explain to you students. What is the title and what is the here name story? A little fish story. The story is about the one little fish. एक छोटी सी मछली की कहानी. Okay. So first of all, I will read this 5 paragraphs. Then I will explain. Okay. This story written by Enos B. Comstock. There was a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again, if I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for them. We suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. बहुत प्यारी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये. हमें एक लाइफ में एक मॉरल भी देती है. स्टूडेंट्स, हम सोचते ना कभी कभी, हमारे मन में ख्वाब, हमारे मन में एक इच्छा होती है, अरे मैं गरीब हूँ, अरे वो तो अमीर है, अरे कहाँ से तुम गरीब हो. मैं ये स्टोरी से हट के आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज एक मॉरल आपको लाइफ में देता है. हम समझते हैं हम गरीब है, अरे गरीब कहाँ हैं, हम गरीब कहाँ हैं, हम मेहनत नहीं करते इसीलिए हम गरीब हैं. हम देखो कि आपने किसी को आपने पूछा आप गरीब हो, चलो मैं आपको बोलता हूँ आप गरीब हो, चलो आपकी मुझे आँख दे दो मैं 1 लाख रुपए देता हूँ. आप कहोगे चलो आपकी 2 आँख दे दो मैं 10 लाख देता हूँ. चलो आपका दिल मुझे दे दो, आपका लीवर मुझे दे दो, मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ, आप दोगे? तो आप तो 2 करोड़ के मालिक बन गए ना. लेकिन ऐसा नहीं, आपकी सही सलामत जिस्म है, आप एफर्ट मेहनत करके आप अच्छे से बड़े बन सकते हो. स्टूडेंट्स, आप कहते मैं गरीब हूँ, आप कहते मैं वीक हूँ, आप मेहनत नहीं करते हो, आप कमज़ोर हो. इस सारे फैक्टर्स से, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप गरीब कहोगे नहीं. तो यहाँ पे एक लेसन में मैं आपको समझाता हूँ. ओके, देर वॉज ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज. यहाँ दरिया में मिलियंस यानी लाखों में, 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs. ओके, तो यहाँ लाखों की मछलियाँ हैं दरिया में, बट द स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. उसमें लाखों करोड़ों मछली में सिर्फ एक मछली की स्टोरी है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. एक बहुत छोटी सी मछली, फिश. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. दरिया में उसको जो मिलना है, उसको खुशी का सारी चीज़ मिल रही है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन ये खुश नहीं है. क्यों? इस सारे दरिया में एंजॉय भी करी, इसको जो चाहिए सब मिल रहा है, लेकिन फिर खुश क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वाई? यू विल लव, आप हंस पड़ोगे. व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, वो क्यों नहीं, तो आप जस्ट लव बस्ट. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. ये इसीलिए नाखुश है कि वो बहुत छोटी है, बेचारी बहुत छोटी है. वो सोचती है मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, वो कहने लगी है. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश. ये मुझे छोटा रहना मुझे पसंद नहीं है. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार अपने आप को कहती है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटी हूँ, कहने लगी. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बहुत बड़ी होती ना, और समंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ घूमती रहती, उसको देख के ईर्ष्या करती है, कहती है मैं इतनी बड़ी हो जाती कि इतनी अच्छी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितनी खुश होती. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. मैंने उसने बहुत बार इस तरह दिन में कितने बार कहती मैं बड़ी होती तो अच्छी होती, मैं बड़ी होती तो अच्छी होती, मैं उसकी तरह अच्छी होती, मैं इसकी तरह अच्छी होती. एक गाना गाने लगती अक्सर. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ स्कूल. यानी यहाँ पे वो जितना उसके जो ग्रुप के स्टूडेंट, ग्रुप के उसके जो मछलियाँ
ओके, shoal ऑफ फिशेस एंड थिंकिंग, नो डाउट, वो सोचती थी नो डाउट, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। वाई सडनली, व्हेन सडनली, अचानक, विथ नो वार्निंग, कोई वार्निंग बेल नहीं बजी है। अरे हम होते ना मछली जब पकड़ने आते उनको कहते अरे भैया आप छुप जाओ हम आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कोई वार्निंग नहीं। जब मछेरे होते ना तो जाली डाल दिए समंदर में मछली पकड़ने के लिए। दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेस ऑफ ए ग्रेट नेट। अब बड़ी बड़ी जितनी भी मछली थी, जैसा शिप्स को जगह शिप्स के ज़रिए भी मछली पकड़ी जाती है, बहुत सारे उसके मेथड है मछली को कैच करने का। अब वो आगे जाली में फंस गए। दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेस ऑफ ए ग्रेट नेट, बड़ी जाली में फंस गए। There was much floundering and splashing as the net was drawn up of the water into the sunlight. जब उसको खींचने लगे बड़ी बड़ी स्प्लैशेस आवाज़ आने लगे। ये कोरे कोशिश करने लगे अपने बचाने के लिए, नहीं हो पाया। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, जब वो दरिया में बोट में सारा ये एम्प्टीड कर दिया गया, ओके, सारी मछलियों को ऊपर बोट में ले लिया गया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इन द कूल क्लियर वाटर। हाउ वुड इट फेल्ट। अब वो तो छोटी थी और वो नेट तो शायद आप तस्वीर में देख ही रहे हो, बड़ी नेट है, ठीक है। तो वहाँ से निकल पड़ी। अब वो वहाँ से स्लिप हो गई मज़े में। अब बड़ी मछली तो नहीं हो पाई है, छोटी थी, तो आराम से स्लिप होके वापस ठंडी सी दरिया में ओके समा गई और बहुत अच्छा महसूस करी। अरे बाप रे, मेरा छोटा होना अभी मुझे समझ आया, मैं तो बच गई आराम से जाली से, और बस मेरी दुनिया में मैं मस्त हूँ, अभी मैं बच गई। ओ थैंक गॉड, मैं छोटी बहुत सही हूँ, मैं तो बड़ी की सपना देख रही थी, अब मुझे समझ आया, ठीक है। ही स्वैम हियर एंड देयर, इधर उधर तैरने लगे, एंड एवरीवेयर, हर जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. उसके जो ग्रुप के मछलियाँ थे, कभी उसके मुंह से ज़िंदगी में नहीं सुने कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे इस तरह से बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है, कभी नहीं सुना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बच के निकल गई, वो तो निकल लिया। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें कभी कोई चीज़ की शिकायत नहीं करना। ये लेसन हमें बहुत अच्छी स्टोरी मोरल देता है, ठीक है। हम जैसे भी है वैसे अच्छे हैं, हम जैसे भी हैं, कोई भी हालत में हम बहुत अच्छे। आपको खुश रहना है, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ हो, चाहे हमारे पास एक ही शर्ट हो, चाहे हमारे पास पुरानी बुक्स हो, चाहे हमारे पास पुराना ही बैग हो, चाहे कुछ भी हो, हम खुश होना चाहिए। क्योंकि ये एक स्टोरी से हमें सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हम कॉन्टेंटेड होना चाहिए हमेशा, हमें लालच नहीं होना चाहिए, हम जैसे भी हम बहुत अच्छे। आई होप यू दिस स्टोरी अंडरस्टैंड वेल। सो इन द PDF form I will send question answers. Thank you.